أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آپ کا تھرڈ لیسن پوسٹ کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ خوب دل لگا کر سیکھ رہے ہیں اور آپ کا پچھلا لیسن آپ اچھے سے یاد کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سبق کی طرف چلیں، میں نیو آنے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہمارا چینل بینیفیشیل لگا تو اسے ابھی سبسکرائب کیجیے اور برابر میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن پر کلک کریے تاکہ ہماری کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اب چلیں دیر کیے بنا چلتے ہیں آپ کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا فرسٹ لیٹر کون سا ہے جو ہمیں آج پڑھنا ہے۔ وہ ہے را۔ را کو پڑھنے کے لیے آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے سامنے کے اوپر والے 4 دانتوں کو ٹچ کرے گی، پھر را ادا ہوگا، لیکن را پراپر نہیں ادا ہو سکے گا جب تک کہ آپ اپنی زبان کا پچھلا حصہ اٹھائیں گے نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ را کو ہمیں ہیوی کرنا ہے۔ جب میں نے آپ کو خ کا بتایا تھا تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لیٹر کو ہیوی کرنے کے لیے ہم زبان کا پچھلا حصہ اٹھاتے ہیں، تو کیونکہ ہمیں را کو ہیوی کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی زبان کا پچھلا حصہ اٹھانا ہوگا۔ اسی کے ساتھ را میں تھوڑی سی وائبریشن کا ایک ساؤنڈ پایا جاتا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اس ٹائپ کا، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں میں تھوڑا آپ کو کہہ کے بتاتی ہوں۔ را، میری جو زبان ہے وہ میرے سامنے والے اوپر کے 4 دانتوں کو ٹچ کر رہی ہے اور میری زبان کا پچھلا حصہ اٹھ رہا ہے، را، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا وائبریشن کا جو ساؤنڈ ہے وہ میری وائس میں پایا جا رہا ہے، لیکن اس میں را مطلب وائس کا ایک کپاہٹ آ جاتی ہے اکثر، وہ غلط ہے۔ اور جو ہے دوسری چیز جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ وائبریشن کا ساؤنڈ اس طریقے کر کے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را کے ساتھ ہم نے ایک الف لگایا ہوا ہے، جس کا مطلب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس کا مطلب ہے ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک الف ہوتی ہے ہماری ایک مٹھی۔ تو چلیں ہم دیر نہیں کرتے اور اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نوٹس میں جیسے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ را کے ساتھ الف ضرور لگا لیجئے۔ اب اپنی مٹھی بنا لیجئے اور پڑھیں را، پھر سے را، میری مٹھی کھل چکی ہے، پھر سے را۔ الحمدللہ ہم را کو اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا اگلا لیٹر زا۔ ہمیں اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ کے اوپر اور نیچے والے دانت جب بند ہوں، ٹھیک ہے، اسے ہم دانت بیچنا بھی کہتے ہیں، آپ کے اوپر اور نیچے کے دانت دونوں مل جائیں اور اس کے بعد آپ کے جو دانت ہیں پیچھے کی طرف ان پہ آپ کی زبان کو ٹکا لیں، ٹھیک ہے، زبان جو ہے وہ آپ کی نیچے کی طرف دانتوں پہ زیادہ ٹکے گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس طریقے کا وائبریشن ساؤنڈ پیدا کریں دونوں دانتوں کو بیچ کر۔ یہ بھی بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی چیز وائبریٹ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دونوں دانتوں کے درمیان میں سے ہوا پاس ہو جو کہ ایک سیٹی کی طرح محسوس ہو رہی ہو، اس طریقے کی۔ تو اس کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں پہلے ویڈیو کو اسٹاپ کر کے۔ اس کے بعد میں ایک اور خاص چیز آپ کو بتاؤں کہ زا کی ادائیگی میں جو ہے جو پروننسیشن ہو، جو ہمارا مخرج ہے زا، اس میں ہمیں سختی بہت زیادہ کرنی ہے اور جماؤ بہت زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو اسٹارٹنگ ہے سختی اور جماؤ کی وہ ادھر سے ہی ہوگی، اسٹارٹنگ سے۔ دیکھیں ایک جماؤ اور سختی آپ کو میرے لہجے میں محسوس ہو رہی ہوگی، وہی آپ کے لہجے میں بھی ہونی چاہیے۔
अच्छा, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ज़ा के साथ हमें एक डंडी लगी हुई दिख रही है, यानी अलिफ बना हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारी एक मुट्ठी नहीं खुलती हम इसे पढ़ेंगे, यानी कि जब तक हम इसे एक अलिफ के बराबर हम जो है वो खींचने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ जो है याद रखें कि ज़ा के लिए दोनों दांतों के दरमियान से पहले हवा का आना ज़रूरी है। अपनी ज़बान की पोजीशन दांतों के पीछे ठीक कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, और ये वाली वॉइस पहले पैदा कर लीजिएगा, ज़, ज़, ज़। अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। अपनी मुट्ठी बंद करें, जब तक आपकी मुट्ठी ना खुले आपने इसे पढ़ना है। ज़ा, देखें इसमें कितना सख्ती और जमाव था। फिर से ज़ा, फिर से ज़ा। ज़ा में जो ये ख्याल रखना है आपको, वो सख्ती और जमाव की वजह से झटका ना लग जाए, इस बात का ख्याल रखना है। ज़ा ऐसे ना हो जाए, या जो है वो ऐसा ना हो कि सख्ती ना हो, ज़ा ऐसे ना हो जाए, या फिर ज़ा ये वाला साउंड ना बने। तो इन चीज़ों का आपको ज़ा के लिए ख्याल रखना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि हम ज़ा को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलें अब देख लेते हैं हमें सीन को किस तरीके से पढ़ना है। सीन को हमने सेम इसी तरीके से पढ़ना है जैसे हमने ज़ा को पढ़ा था, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, इसी वजह से पिक्चर भी सेम है। अब आप देख सकते होंगे कि जिस तरीके से हमने ज़ा के लिए दांतों को बंद किया था, वैसे ही आप सीन के लिए भी दांतों को बंद करें, और आपकी जो ज़बान है वो आपके दांतों के निचले हिस्से पर लगेगी, यानी आपके नीचे वाले दांतों पर लगेगी, और जो आपकी दांत है उनके दरमियान में से पहले हवा आएगी और फिर होठ आएगा, और वही सीटी और सख्ती के साथ आएगा और जमाव के साथ आएगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ज़ा को हमने खींचा नहीं था और सीन को हमने खींचना है, वो भी 5 अलिफ के बराबर, ठीक है, क्योंकि सीन के ऊपर हमें मद नज़र आ रहा है, सीन या नून और ऊपर एक लंबी डंडी यानी कि मद, ठीक है। तो चलें सीन की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। अपनी 5 उंगलियां बंद कर लें। सीन, फिर से याद रखें कि पहले सीटी आए फिर हो। सीन, फिर से सीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमें शीन को किस तरीके से पढ़ना है। शीन के लिए हमने सेम वही पिक्चर यूज़ की है जो कि हमने जीम के लिए की थी। अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आगे आगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती जाएगी। जीम हमारे मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा था, शीन भी बिल्कुल वैसे ही अदा होगा। देख लें कि जो है वो जीम में हमारे जो ज़बान थी वो हमारे ऊपर के तालू पे लग रही थी, और शीन में भी वही सेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं शीन या नून और ऊपर एक लंबी सी डंडी यानी कि मद। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम जो है वो 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और अब हम जल्दी से शीन की प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ईजी है। लेकिन याद रखिए कि शीन बोलते हुए पहले थोड़ा सा शी वाला साउंड, शी वाला साउंड थोड़ा सा ऐड करें, क्योंकि वो इसकी खूबसूरती है। चलें अपनी मुट्ठी बंद कर लें, जब तक 5 उंगलियां हमारी नहीं खुलेंगी हम पढ़ेंगे। शीन, शीन मेरे मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा है, जो मेरी ज़बान है वो ऊपर तालू से लग रही है। फिर से शीन, फिर से शीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम शीन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। चले देख लेते हैं हमें सौद को कैसे पढ़ना है। सौद के लिए हमने सेम ज़ा वाली पिक्चर यूज़ की है। उसकी वजह यह है कि ज़ा और सौद का पैटर्न सेम है, लेकिन थोड़ी चेंजिंग के साथ। चलें देखते हैं। आपने देखा होगा कि ज़ा में जमाओ, सीटी और सख्ती पाई जा रही थी, वही सौद में भी पाई जाएगी। आपने ये भी देखा होगा कि ज़ा के लिए हमें अपने दोनों दांत बीचने थे, वही हमें सौद के लिए भी करना है। मगर अब आते हैं हम चेंजिंग की तरफ।
चेंजिंग ये है कि सौद हैवी लेटर है, तो इसका मतलब शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या है। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी ज़बान का पिछला हिस्सा उठाएंगे तो सौद हैवी होगा। उसी के साथ जो दूसरी चेंजिंग है वो ये है कि ज़ा में हमारी ज़बान की पोजीशन चेंज थी, जबकि सौद में हमारी ज़बान जो है, हमारी ज़बान की जो लेफ़्ट साइड की करवट है, यानी जो हमारी ज़बान का लेफ़्ट साइड है, वो हमारे ऊपर की 5 दाढ़ों को टच करेगा। आप वीडियो को स्टॉप करके टच कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वो ये कि जब हम सौद को पढ़ेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सौद के ऊपर मद है, तो हम इसे 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। 5 अलिफ के बराबर खींचना क्या हुआ कि हम इसे एक एक करके उंगलियां खोलेंगे पाँचों, और फिर वो हमारा हो जाएगा अंदाज़ा 5 अलिफ, ठीक है। उसी के साथ आप देख सकते हैं सौद लिखने के लिए सौद, अलिफ और दाल का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका जो लास्ट वाला दाल आप देख रहे हैं, सौद, अलिफ और दाल, लास्ट वाला जो दाल देख रहे हैं, उसकी वॉइस आनी चाहिए पलट के। किस तरीके से? वो ऐसे, सौद। देखें मेरी वॉइस जो है वो पलट के आई है। इसके लिए आप अपने दोनों होठों को मिला के थोड़ा मतलब मिला के थोड़ा हटाएंगे तो भी ये वॉइस जो है वो बनेगी। मैं आपको बताती हूँ कि हमें सौद की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले मैं उम्मीद करती हूँ आपने, क्योंकि सौद थोड़ा हार्ड है, वीडियो स्टॉप करके प्लीज़ देख लें कि आपको किस तरीके से अदायगी करनी है। अब हम इसकी चल रहे हैं प्रैक्टिस की तरफ। अपनी पाँचों उंगलियां बंद कर लें, अपने दांत बीच से लें, अपनी ज़बान की लेफ़्ट साइड वाली करवट को अपने ऊपर वाले 5 दाढ़ों पे लगा लें। पहले हवा पास होगी और फिर आएगा हुरूफ, सीटी, सख्ती और जमाव के साथ। सौद। जैसे कि आपने देखा कि मेरा दाल पलट के आया है, ऐसे ही आपका भी आना चाहिए। फिर से सौद, फिर से सौद। अल्हम्दुलिल्लाह हम सौद की प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हैं। चलें अब हम देख लेते हैं हमें ज़ौद को किस तरीके से पढ़ना है। ज़ौद सुनने में जितना आसान है, ये आपको लगेगा प्रैक्टिस करके कि ये काफ़ी आसान है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ये लेटर कुछ हार्ड लेटर्स में से है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके फिर आपको मेरी वॉइस से इस वॉइस को मैच करना होगा कि ये प्रॉपर अदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। इसका जो तरीक़ेकार है बहुत आसान है, जिस तरीके से सौद को हमने पढ़ा था, लेकिन चेंजिंग है वो ये कि हमें सिर्फ अपनी ज़बान की लेफ़्ट साइड की करवट हमारी ऊपर वाली 5 दाढ़ों पर लगानी है, जिसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमें अपने दांत भी बीच लेने हैं और हमें सीटी भी निकालनी है, सख्ती भी निकालनी है, ऐसा कुछ। लेकिन साथ में एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़ौद है हैवी लेटर, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी ज़बान का पिछला हिस्सा उठना चाहिए, तब आपका ज़ौद प्रॉपर अदा होगा। साथ में ही आप देख सकते होंगे कि ज़ौद के ऊपर है मद, जिसका मतलब है कि हम इसे 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और जैसे कि लिखा हुआ है ज़ौद, अलिफ, दाल, तो लास्ट वाला दाल जो है वो पलट के आना है, जैसे कि ज़ौद। देखें मेरी वॉइस जो है वो पलट के आई है। इसके लिए आप अपने दोनों होठों को मिला के थोड़ा मतलब मिला के थोड़ा हटाएंगे तो भी ये वॉइस जो है वो बनेगी। मैं आपको बताती हूँ कि हमें सौद की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले मैं उम्मीद करती हूँ आपने, क्योंकि सौद थोड़ा हार्ड है, वीडियो स्टॉप करके प्लीज़ देख लें कि आपको किस तरीके से अदायगी करनी है। अब हम इसकी चल रहे हैं प्रैक्टिस की तरफ। अपनी पाँचों उंगलियां बंद कर लें, अपने दांत बीच से लें, अपनी ज़बान की लेफ़्ट साइड वाली करवट को अपने ऊपर वाले 5 दाढ़ों पे लगा लें। पहले हवा पास होगी और फिर आएगा हुरूफ, सीटी, सख्ती और जमाव के साथ। सौद। जैसे कि आपने देखा कि मेरा दाल पलट के आया है, ऐसे ही आपका भी आना चाहिए। फिर से सौद, फिर से सौद।
अल्हम्दुलिल्लाह हम सौत की प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हैं। चलें अब हम देख लेते हैं हमें ज़ौत को किस तरीके से पढ़ना है। ज़ौत सुनने में जितना आसान है ये आपको लगेगा प्रैक्टिस करके कि ये काफ़ी आसान है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ये लेटर कुछ हार्ड लेटर्स में से है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके फिर आपको मेरी वॉइस से इस वॉइस को मैच करना होगा कि प्रॉपर अदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। इसका जो तरीक़ेकार है बहुत आसान है। जिस तरीके से सौत को हमने पढ़ा था, लेकिन चेंजिंग है वो ये कि हमें सिर्फ अपनी ज़बान की लेफ़्ट साइड की करवट हमारी ऊपर वाली 5 दाढ़ों पर लगानी है। जिसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमें अपने दांत भी बीच लेने हैं और हमें सीटी भी निकालनी है, सख्ती भी निकालनी है, ऐसा कुछ। लेकिन साथ में एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़ौद है हैवी लेटर, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी ज़बान का पिछला हिस्सा उठना चाहिए, तब आपका ज़ौद प्रॉपर अदा होगा। साथ में ही आप देख सकते होंगे कि ज़ौद के ऊपर है मद, जिसका मतलब है कि हम इसे 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और जैसे कि लिखा हुआ है ज़ौद अलिफ दाल, तो लास्ट वाला दाल जो है वो पलट के आना है। जैसे कि ज़ौद, आप देख रहे होंगे कि जो है मेरी वॉइस थोड़ी सी पलट के आई है, तो इसी तरीके से आवाज़ थोड़ी सी पलट के आएगी। चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। अपनी मुट्ठी बंद कर लें कि ज़बान का लेफ़्ट हिस्सा जो है आपकी ऊपर वाली लेफ़्ट दाढ़ों, जो 5 दाढ़ें हैं उन पे लगना चाहिए। प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ज़ौद, फिर से ज़ौद, फिर से ज़ौद। आपने फील किया होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़ा का साउंड नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। एक नॉर्मल लेवल पे इस पे जो है वो ज़ा का साउंड आ रहा है, जैसे कि ज़ो ज़ो ज़ो, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे करके नहीं, इस टाइप का भी नहीं होना चाहिए। तो जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे इसमें जो है वो ज़ो का साउंड आना चाहिए।